to my video. In this video I am going to be talk on the binary tree traversal method. As I told you in the last video, I will talk on the traversal method, so I came again with a binary tree traversal method. A binary tree traversal method means what? As I told you in the previous video, traversal is a process which helps us to visit every node in the tree. So, traversal is a process which helps you to visit every node in the tree. Then what is the purpose to visit every node in the tree? Because we want to add all the value of each node in the tree. That means the value of every node in the tree, if you want to be calculate, if you want to be add, then we must have to be traverse. And the second thing, if you want to find the largest value of which node, then we have to be go for the traversal method. For all these operations, we will need to visit each node of a tree one by one. So, binary traversal method allows us to do for this. Now, as I told you, linear data structure like array, stack, queue and linked list have only one way to read the data. Again, dear students, I am repeating, linear data structure like array, stack, queue and linked list, they allow us to read the data only one way, but non-linear data structure like tree or graph allows us to traverse the data in a different ways. So, I am going to be talk the recursive method. So, I am going to be talk a recursive method. There are three ways through which we are able to be traverse a binary tree. So, in these three ways we have a in-order traversal method, pre-order traversal method and post-order traversal method. Again, I am repeating, dear students, kindly try to understand. These three ways to traverse a tree, this is the three method, and we are going to be talk on the recursive method. Inside the recursive method, we have a three ways to traverse a tree. The first one is called in-order traversal method, second one is pre-order and the third one is post-order. Now, we are going to be see one by one in detail. So, in-order traversal method. So, first topic I am going to be cover the in-order traversal method. In-order means between, in means inside, that means the root part should become between the left child and the right child. Dear students, kindly try to understand this basic point, because by this point only you are able to be traverse the tree in order traversal method. So, the root should be between the left child and the right child. So, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड में क्या होता है कि रूट जो हमारा होता है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में होता है, यानी कि ये हमारा जो रूट जो बीच में पाया जाता है, पहले हम लोग लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम लोग रूट को जाएंगे, फिर हम लोग राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे. तो इसका डेफिनेशन ये कहता है इन ऑर्डर का, इन दिस ट्रैवर्सल मेथड द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट. एज आई टोल्ड यू, द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट, then we have to go for the root, and the last we have to go for the right subtree. Next point, it says that we should always remember that every node may represent a subtree itself. So हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि every node may represent a subtree itself. If a binary tree is traversing in order, then the output will be produced shorted key value in an ascending order. Again, I am repeating this point because it is more important. Please give your attention. If a binary tree is traversing in order, then the output will produce that should be in ascending order.
Next point says that in in-order traversal method, the root is visited between the left child and the right child. In this traversal, the left child node is visited first, then we have to go for the root node, and at last we have to go for the child node. So these are the three basic points under the in-order traversal method. So first point says that we have to go for the left subtree, then we have to go for the root, and then we have to go for the right subtree. So these are the three basic points we have to keep in our mind when we are going to use the in-order recursive traversal method for traversal the tree. So this is an example. Let us consider one example. So this is a tree. We have this figure. Now we are going to traverse this tree with the help of a in-order traversal method. Dear students, kindly give your attention here. So it's a binary tree. It's a binary tree because as we know that binary tree says that each node must have maximum having two children. Not more than 2 children, but less than 2 will be possible, but not more than 2 children. So it's a binary tree, example of a binary tree. Now we are going to traverse the binary tree. So A is considered as a node here. A is considered as a node. This one is node. Now we have to come for the left. We have to come for the left subtree. This is our left subtree. Okay, and this is our right subtree. So as per the point, what is the point says here? So we have to first go for the left child, then root, then come to the right child. So this is the left subtree. So A is a root. In the A root we have 2 node. So A having a 2 child, B and C. B is considered as a left child and C is considered as a right child. So in-order traversal says that we have to come first left. So we have to consider the B here. But again B itself as a root node. So again B having a left child and right child. So again we have to come for the left child is D, and then root, and then E is there. So in-order traversal says that we have to first go for the left child. So A having a left child B and B having a left child D. So first we have to write D here. Now I am explaining you D. First we have to write the D here. Then after the D left child, then we have to go for the root. Then root is there. Then we have to come for the right child. Then D B E. Is it clear now? We have to come for the left first, then root, then right. So this it's completely over. This part is completely over. So left part is completely over. Now once DBE is over, now this is the left part. Now we have to come for the root, the DBE. So DBE, so B having a root A, then A will become. Now the A after that again we have a right child. Right child is C. Now again C having a 2 node left and right, that is F having the left child and G having the right child. So again here also we have to follow the in-order traversal method. So first after A we have to write here F, then node C, then G. So this is complete in-order traversal method. Dear students, please give your attention here. Again I am explaining you for your benefit. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड में हमारा ए जो है वो रूट है। अब हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कहता है कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट चाइल्ड को केयर करना है, फिर रूट को जाना है, फिर राइट चाइल्ड को जाना है। लेकिन ए का हमारा 2 चाइल्ड है, बी और सी। बी हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, सी हमारा राइट चाइल्ड है। अगर हम बी को कंसिडर करते हैं तो बी का फिर हमारा 2 चाइल्ड हो जाता है, डी और ई। तो डी हमारा लेफ्ट चाइल्ड होता है, ई हमारा राइट चाइल्ड हो जाता है। तो हम सबसे पहले हम डी को यहाँ पर लिखेंगे, डी हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया। फिर हमारा रूट में हम जाएंगे, बी पर जाएंगे, फिर हमारा राइट हो गया, ई हो गया। तो डी बी ई हमारा एक पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब हमारा डी बी ई का रूट क्या है, हमारा ए है, तो ए को हम लिखेंगे। अब हमारा राइट पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। ए हमारा क्या है, राइट पार्ट। ये टोटल हमारा क्या है, राइट पार्ट है। अब इस राइट पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, सी का फिर से हमारा 2
चाइल्ड है, F है और G है, तो F हमारा फिर क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, G हमारा क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। तो एज पर द इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड वी हैव टू गो फॉर द लेफ्ट, देन रूट, देन राइट, देन F विल बिकम, आफ्टर A F आएगा, फिर हमारा रूट C आएगा, फिर हमारा G आएगा। तो इस तरह से हम इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड में इस बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कर पाएंगे। सो हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगी DBEAFCG आएगा, जो एक हमारा फाइनल आउटपुट होगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड का। अब इसका यूजेज की अगर हम लोग बात करते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड का यूज क्या होता है, तो पहला यूज जो है कि इन केस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिव्स नोड्स इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स इट शुड बी नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि टू गेट नोड्स ऑफ BST दैट इज बाइनरी सर्च ट्री इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, that means it should be not be in increasing order, it should be in decreasing order. A variable of in order traversal where in order traversal reverse can be used. So यहाँ पर हम लोग रिवर्स कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो प्री ऑर्डर मतलब प्री मीन्स पहले, तो रूट कहाँ पर आएगा, पहले हमारा आएगा, उसके बाद चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसके बाद हमारा राइट चाइल्ड होगा। फिर से इस बात को समझिएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा क्या होता है, रूट जो होता है वो पहले आ जाता है, कि सबसे पहले हम लोग रूट को एक्सेस करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट चाइल्ड की ओर जाएंगे, फिर हम लोग राइट चाइल्ड की ओर जाएंगे। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड we have to first go to the root, then we have to go for the left child, and finally we have to go for the right child. In this term, now we have to see the definition of a pre-order traversal method. In this traversal method, the root node is visited first, as I told you, then left subtree, and finally go for the right subtree. In pre-order traversal, the root node is visited before the left and the right nodes. As I told you, root node is visited before the left node and the right node. In this traversal method, the root node is visited first, then we have to go for the child node, and then we have to go for the left child node, and then we have to go for the right child node. Now, there are three basic points for the pre-order traversal method. The same thing, just I am giving in a point wise. First, we have to visit the root, then we have to visit the left, then we have to go for right. So first we have to go for the root, we have to visit root, then we have to go for the left subtree, then we have to go for the right subtree. Now we have to see the example again. The same example I am taking, and now we are the same binary tree, we are going to be traversed by using the pre-order traversal method. So here again we have a root A. A root A having a two node B and C. B is a left child and C is a right child. Again B having two nodes D and E. D is a left child and E is a right child. The same way C having a two nodes F and G. F is a left child and G is a right child. Now, as per the point, in pre-order we have to first consider the node, then we have to go for the left, then we have to go for finally for the right. Then we first node we have to go for root, then A is the root for us. Once we consider the A, we have written A here. Now, A having a left child B again. So, B is there, then B again having a two node D and E. So, A is a node of B. Now B A is over. Now the A having a left B, then B will become. Then this is completely what? This is completely left subtree. This is completely left subtree. In the left subtree, we have again node B. So after A, we have to write B. Why? Because B is a node of left subtree. So B, after B, we have left is D and right is E. So completely it will be
left option, left subtree will be over. So finally we have, first we write the node A having a left B, then BDE is completely left subtree. In BDE again B is a node and DNE is a child for the node B. So A, then B, then left again D, and right is E. So this left part is over. Now come to the right part. So already A is considered. So now A having a right part C. Again C is what? C is a left, this is the right subtree. Then C is again a node. It's a root node, and this root node having a two child F and G. So we have to write C first. After C we have to write C first. Then C again, in the C node, C root node, again left side we have a F and the right side have a G. So this is complete output of the pre-order traversal method. Dear students, again I am trying to explain you, please try to understand. In pre-order traversal method में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग रूट को ट्रैवर्स करते हैं, देन हम लोग लेफ्ट जाते हैं, फिर हम लोग राइट की ओर जाते हैं. तो इस केस में हम लोग बाइनरी ट्री का एग्जांपल लेते हैं. तो इस केस में हमारा रूट क्या है? सबसे पहले रूट हमारा ए है, तो ए हमने ले लिया. अब एक रूट लेने के बाद हम फिर किस में जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे. तो लेफ्ट हमारा क्या है? बी है. तो बी हमारा क्या है? बी हमारा एक सिंगल नोड नहीं है, बी के साथ फिर दो नोड जुड़ा हुआ है, यानी कि बी डी ई हमारा एक लेफ्ट सब ट्री बन गया है. सो बी इज अगेन बिकम अ रूट नोड ऑफ डी एंड ई. सो हमारा ए के बाद क्या लिखेंगे? हम लोग बी लिखेंगे. बी के फिर लिखने के बाद, बी के बाद हम लोग क्या है? हमारा प्री ऑर्डर का डेफिनेशन क्या कहता है? रूट देन लेफ्ट. तो बी के बाद हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. डी के बाद हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि रूट बोलता है, लेफ्ट बोलता है, फिर राइट बोलता है. तो हमारा बी डी ई एक कंप्लीट हो गया, लेफ्ट साइड वाला पूरा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग राइट साइड की ओर आते हैं. ए का राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी हमारा है. तो सी को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो सी हमारा फिर से हमारा क्या है? ये हमारा फिर रूट नोड हो जाता है, क्योंकि सी का फिर से दो चाइल्ड है एफ और जी. तो सी एफ जी बिकम अगेन अ राइट सब ट्री. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग प्री ऑर्डर का वो बेसिक 3 पॉइंट को कंसिडर करेंगे. तो पहला क्या है? हमारा रूट हो जाएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट. सो हमारा क्या हो जाएगा? सब फिर हम क्या लिखेंगे? सी को लिखेंगे. सी लिखने के बाद उसका लेफ्ट क्या होगा? एफ लिखेंगे. फिर हम लोग लास्ट में जी लिखेंगे. तो इस तरह से हमारा फाइनल आउटपुट जो होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड का ए बी डी ई एफ ई सी एफ जी. अगेन आई एम रिपीटिंग यू, प्लीज आप ध्यान से समझिएगा. ए बी डी ई सी एफ जी, ये हमारा आपका प्रॉपर प्री ऑर्डर का कैसे हम लोग ट्रांसवर्सल करते हैं वो दिखाया गया है. यानी कि सबसे पहले नोड ए पर हम जाएंगे, फिर बी पर जाएंगे, फिर डी पर जाएंगे, फिर हम लोग ई पर जाएंगे, फिर हम लोग सी को जाएंगे, फिर एफ, फिर जी को जाएंगे. तो इस तरह से अगर हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड को फॉलो करेंगे तो इस तरह से नोड पर हम लोग पहले विजिट करेंगे. इस तरह से हम लोग नोड को विजिट करेंगे. ठीक है, अब इसका एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं. कहां पर इसको हम लोग यूजेस क्या है इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड का? तो फर्स्ट यूज इज दैट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ट्री. क्या करता है? ए कॉपी ऑफ द ट्री, यानी कि किसी भी ट्री का एक कॉपी को क्रिएट करता है, वैसा बनाता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है. द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रीफिक्स expression of an expression tree. So prefix expression on a expression tree. जो ट्री दिया उसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन करता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली. अब हम लोग को लास्ट टॉपिक है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड. सो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड क्या कहता है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. सो पोस्ट ऑर्डर जो होता है हमारा कि पोस्ट मीन्स बाद में, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? रूट आएगा. सो द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड, द मेन पॉइंट टू रिमेंबर इज फर्स्ट इट विल बिकम लेफ्ट चाइल्ड, देन वी हैव टू गो फॉर द राइट चाइल्ड एंड फाइनली इट विल बिकम टू द रूट. पोस्ट मीन्स बाद में, दैट मीन्स द रूट विल बिकम एट लास्ट. So we have to first visit the left child, then we have to visit the right child, and then finally we have to go for the root. So in the post order traversal method, in this
post order traversal method. In this traversal method, the root is visited last. As I told you, we have to visit the root at the last. Hence the name is already given as a post order. First we have to traverse left subtree, then right subtree, and finally we have to go for the root node. In post order traversal, the root node is visited after the left child and right child, as it's clearly mentioned, it's clearly explained you. In this traversal, left child node is visited first, then we have to visit right child, and then finally we have to go for the root node. The same thing I try to put in the point wise. Kindly please have a note for this. So first we have to visit the left child, then we have to go for the right, and then finally we have to go for the root. So हम लोग सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग रूट को टच करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है जो हमें याद रखना है जब कभी भी हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड की बात करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑर्डर मतलब पोस्ट मीन्स बाद, यानी कि रूट जो होगा सबसे बाद में हम लोग जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे। ठीक फिर से हम लोग वही बाइनरी ट्री को हम कंसिडर कर रहे हैं एज एग्जाम्पल। उसी बाइनरी ट्री को हम लोग पोस्ट ऑर्डर मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स करने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखिए यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। Dear students, again I am repeating the same example, same binary tree, and with the help of a post order traversal method, I want to be traverse this binary tree. So here A is a root of node B and node C. Same way B is a root for node B, D and node E. The same way C is a root node of F and G. So B, D, E become a left subtree, C, F, G become right subtree. So post order says that we have to first visit the left child. So what is the left child here? What is the left child here? So here the left child is D. So I have written D first. Then after left we have to go for right. Then after D we have to come to E. I have written E here. Then after left, right, and then we have to go for root. Then I have written B here. It's clear now? I hope it is clear for you. So first I have written left child D, then written right child E, then finally I have to go for the what? Finally I have to go for root B. The same way I have to come for the left child. I have to come to the right subtree. In the right subtree I have a left child F, then right child G, then I have a root C. Again finally the root of left subtree and the right subtree is A. So A will become at last. Dear students, again I am repeating this example for you. Please try to understand. यहाँ पर जब हम लोग पोस्ट ऑर्डर में इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले क्या हमारा पॉइंट कहता है कि लेफ्ट को हम लोग को जाना है। लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर हम लोग रूट को लिखेंगे। तो इस बाइनरी ट्री में लेफ्ट नोड हमारा क्या है, बी है। बी का लेफ्ट हमारा क्या है, डी है। तो सबसे लास्ट में हमारा डी क्या है, हमारा डी ही ना लेफ्ट, इससे आगे तो कोई लेफ्ट नहीं है, तो हम लोग डी को लिखेंगे। जब डी हमने लिख दिया लेफ्ट चाइल्ड है हमारा, तो डी हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया, तो राइट कहाँ होगा यहाँ पर इसका, ई हमारा राइट चाइल्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? और डी लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ई राइट चाइल्ड हो गया, डी और ई का रूट कौन है, तो बी हमारा, तो हमने बी लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ए हमारा लेफ्ट सब ट्री हमारा ओवर हो गया। अब हम लोग राइट सब ट्री की ओर आ जाते हैं। राइट सब ट्री मीन्स आई एम टॉकिंग फॉर दिस। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारा सी क्या है, हमारा सी रूट नोड है। तो रूट नोड का हमारा लेफ्ट क्या है, हमारा एफ है, और राइट हमारा क्या है, जी है। तो हमारा क्या है, पोस्ट ऑर्डर क्या डेफिनेशन कहता है, सबसे पहले हमको लेफ्ट की ओर जाना है। तो हमारा क्या लिखेंगे, हम एफ को पहले लिखेंगे। सो हमने एफ को लिखा। अब हमारा एफ जब लिख दिए, लेफ्ट चाइल्ड लिख दिए, तो हमारा दूसरा क्या होगा,
लेफ्ट के हमारा लिखने के बाद क्या कहता है, राइट की ओर जाना है। तो हमारा ए सी ए, जब एफ हमने लिखा लेफ्ट चाइल्ड, तो हमारा इसका सी जब लेफ्ट चाइल्ड है तो मतलब एफ जब लेफ्ट चाइल्ड है तो सी का राइट चाइल्ड क्या होगा, जी होगा, तो हमने जी लिख दिया। फिर एफ और जी का रूट नोड क्या है, सी है, तो हमने सी को लिख दिया। फिर हमारा फाइनली बी और सी ये दोनों का जो रूट नोड क्या है, ए होगा, जो हमने ए लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल जो आउटपुट जो होगी पोस्ट ऑर्डर का ट्रावर्सल मेथड का, जो हमारा डी ई बी एफ जी सी ए कहलाएगा। यानी कि जो हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड को अगर हम फॉलो करके ये बाइनरी ट्री को हम लोग ट्रावर्सल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को डी नोड पर जाना पड़ेगा, फिर हम लोग ई नोड को जाएंगे, फिर हम लोग बी नोड पर ट्रैवर्स करेंगे, फिर एफ को जाएंगे, जी को जाएंगे, सी को जाएंगे और लास्ट में हम लोग ए नोड को हम लोग टच करेंगे। सो इस तरह से हमारा ये ट्रावर्सल मेथड हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका यूजेज ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड। अगर हम लोग इसका यूज की बात करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड जो यूज होता है, इट इज यूज टू डिलीट द ट्री। यहां पर जो कहता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड इज यूज टू डिलीट द ट्री को डिलीट करने में ये हमारा काम करता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड इज ऑल्सो यूजफुल टू गेट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। वहां पर हमने देखा था इन ऑर्डर में हमने प्री ऑर्डर में देखा था। प्री ऑर्डर का एग्जांपल की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या था, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, यहां पर क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो ये दोनों पाथ को हम फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। जब हमने यूजेस की बात की थी तो यहां पर जब हमने सेकंड यूजेस देखा था तो यहां पर भी यही कहता है कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज्ड टू गेट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। द सेम वे अगर हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का एग्जांपल की यूजेस की बात करते हैं तो यहां पर भी हमारा ये क्या कहता है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूजफुल टू गेट द पोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। सो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमको एक्सप्रेशन ट्री के हमको लेने के लिए मदद करता है। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बार फिर से आपको हम रिकॉल करने का कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या समझाने का कोशिश किया है। तो हमने पहले बताया कि बाइनरी ट्री जो ट्रावर्सल मेथड है, बाइनरी ट्री ट्रावर्सल मेथड, बाइनरी ट्री क्या होता है, यानी कि बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसका हर नोड जो होता है वो उसका जो मैक्सिमम चाइल्ड होगा 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि बाइनरी ट्री, अ ट्री इन विच every node should maximum of 2 children, not more than 2, then it is called a binary tree। अब बाइनरी ट्रावर्सल मेथड की बात करते हैं तो हमारा 3 तरह का होता है। ये हम रिकर्सिव मेथड की बात कर रहे हैं। अंडर द रिकर्सिव मेथड वी हैव अ 3 ways टू ट्रावर्सल अ बाइनरी ट्री। सो हमारा 3 तरह का होता है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है, प्री ऑर्डर होता है और पोस्ट ऑर्डर होता है। तो इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं वो हम आपको एक बस ब्रीफ देकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन ऑर्डर दैट मीन्स द रूट विल बी बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। फिर से हम बता रहे इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा रूट जो होगा वो बीच में होगा, लेफ्ट का और राइट का। ये बात को आपको बस ध्यान में रखना है। इन ऑर्डर में क्या होगा, रूट जो हमारा बीच में होगा, लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का। उसी तरह अगर हम लोग प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में क्या होता है हमारा कि प्री मीन्स पहले, यानी कि रूट जो हमारा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। रूट कहां पर आएगा, सबसे पहले मेरा आ जाएगा। जब रूट सबसे पहले आएगा तो फिर हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगी, उसके बाद राइट चाइल्ड हो जाएगी। यानी कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड को इस्तेमाल करके अगर हम लोग बाइनरी ट्री को ट्रावर्सल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रूट को जाएंगे, फिर हम लोग लेफ्ट चाइल्ड को जाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में हम लोग राइट चाइल्ड को हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा प्री ऑर्डर का है। तो प्री मीन्स पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, देन फिर हमारा क्या होगा, राइट चाइल्ड आएगा। फिर हमारा लास्ट हम एक टॉपिक हमारा है वो क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड। सो पोस्ट में हमारा क्या होता है, पोस्ट मीन्स बाद, यानी कि रूट जो होगा वो सबसे लास्ट में हम लोग ट्रावर्सल करेंगे।
यानी कि सबसे लास्ट में हम लोग रूट को, वहां पर हम लोग रूट को मतलब रूट को विजिट करेंगे। तो सबसे पहले विजिट क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड को, फिर हम लोग राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे, एट लास्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, वो हम लोग रूट में, रूट को हम लोग लास्ट में जाएंगे। सो हमारा लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, देन राइट चाइल्ड एंड देन फाइनली वी हैव टू गो फॉर द रूट। आई होप आप इस पॉइंट को, इस 3 जो मेथड है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आप इसको फिर से आप एक बार इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको आप बनाने का कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए क्लियर होगा। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। थैंक यू।